Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Hello and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Key domestic stocks hit fresh record highs, logging modest gains. Sensex closes near 55,800. Nifty settles above 16,600. Global share market decline amid slowdown in China and political turmoil in Afghanistan. And Brent crude price declined to trade around $69 per barrel. वृद्धि दर्ज करते हुए प्रमुख घरेलू सूचकांक ताजा रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर पहुंचे। सेंसेक्स 55,800 के करीब हुआ बंद, निफ्टी 16,600 के ऊपर रहा। चीन में मंदी और अफगानिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच वैश्विक शेयर बाजारों में आया गिरावट का रुख और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य कम होकर $69 प्रति बैरल के करीब था। मार्केट मंत्रा ब्रॉट टू यू बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें। सेंसेक्स और निफ्टी आज ताजा रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर पहुंच गए। वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत नकारात्मक रहने के बावजूद दोनों सूचकांकों में सामान्य तेजी दर्ज हुई। सेंसेक्स 55,800 के करीब रहा और निफ्टी 16,600 के स्तर से ऊपर हुआ बंद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.38% की तेजी से 210 अंक बढ़कर 55,792 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.31% की वृद्धि से 52 अंक बढ़कर 16,615 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.71% के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% की बढ़त दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today hit fresh record highs. Both stocks logged modest gains even as the cues from global equity markets were negative. The Sensex closed near 55,800 while the Nifty settled above the 16,600 level. The BSE Sensex gained 210 points or 0.38% to close at 55,792. The NSE Nifty also rose 52 points or 0.31% to settle at 16,615. In the broader market at BSE, the mid-cap climbed 0.71% and the small-cap index gained 0.3%. In the Sensex pack, shares of 18 companies gained while 12 logged losses. Tech Mahindra was the top gainer as it surged 3.2%, followed by TCS and Nestle India, which gained 2.3%. Infosys rose 2.2% and Hindustan Unilever climbed 2.1%. On the other hand, IndusInd declined 1.8% and NTPC fell 1.3%. Bharti Airtel slipped 1.2%, while Larsen & Toubro and Mahindra both ended 1.1% down. In sectoral indices, 9 out of 19 sectors logged gains. IT sector gained the most, adding 2.3%, followed by tech sector stocks, which surged 1.9%. Healthcare climbed 1.4% and FMCG gained 1.2%. On the other side, metal
plunged 2.6%. Telecom sector stocks declined 1.1% and basic material fell 1%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,081 companies gained while 2,089 fell. Shares of 118 companies remained unchanged. Ms. Ramchandran, of course, markets are on a high. They are on a bull run right now. But there is always this slight bit of doubt in some people's minds that there's a disconnect between the Indian economy and the share markets. Are we going to see, is this some kind of a bubble which is happening right now, which unfortunately, might just burst? Yes, you're absolutely right. There is a disconnect between the stock markets and what is happening in the economy, especially since March 2020. But this is something that is not peculiar just to the Indian stock markets and the Indian economy. You see it probably globally, even in the U.S., when the economic conditions were, moving on a downward trend last year after the COVID pandemic, the U.S. stock markets were rising. Now, this is primarily due to the fact that, you had people at that time, young people who were shifting the surplus funds from the traditional areas of investment into equities. This is something documented last year. Surveys have been done about this in the U.S. as well as in India, that we have now a whole new class of investors, and very interestingly, a lot of them are quite young. People who were probably investing in real estate, who had their money in fixed deposits earlier, they found that the returns were not available. So they are now investing here. Apart from that, of course, you have the flow of liquidity coming in from from the U.S. Because of the huge the liquidity that they are releasing into the market, the Federal Reserve. So these are twin factors that have affected the stock markets in this country, and which is why we have been seeing a rising trend. And of course, it has not aligned to what is happening on the economic front, because we have had ups and downs, but the stock market has been going on an upward trend. So I will not describe it as a bubble. I will say this is a phenomena that has probably taken root, and I don't think it's going to. We're not going to have a sudden collapse as yet. सुषमा जी, अगर हम इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की भी बात करें तो 2 महीने से जो इकोनॉमिक फिगर्स आ रही हैं सामने, जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, जीएसटी कलेक्शंस हों या ई-वे बिल्स हों, या जैसे हम बात कर रहे थे मनी मैटर्स में भी कि जो निब्री है, नोम्यूरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स, वो 101.2 पे पहुंच गया, यानी कि जो दर्शा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी प्री पैंडेमिक लेवल्स पे पहुंच गई है. तो आपको लगता है कि ये सेकेंड वेव के बाद जो रिकवरी है वो फास्टर होने के कुछ ठोस संकेत भी सामने हैं और इनसे भी बल मिल रहा होगा बाजार को? बिल्कुल ठीक कह रही है आप सोनू, पर जो आपके दूसरे एंकर ने बोला कि ये डिस्कनेक्ट है, वो डिस्कनेक्ट अगर आप अप्रैल मई में देखें, अप्रैल में जब हमारा सेकेंड वेव आया था और इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से रुक गई, जो उस वक्त जो जनवरी फरवरी में दिखाई दे रहा था कि वी शेप रिकवरी होगी, उस वक्त एकदम से डिप हुआ हमारी आर्थिक स्थिति में, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्शन नहीं आई थी. अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है. ये जुलाई से जो आंकड़े आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, जीएसटी कलेक्शंस के, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, जो आपने कहा नोमिरा का बिजनेस रिपोर्ट है, रेलवे फ्रेट अर्निंग्स, ये सारे जो आंकड़े आ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स के दिखा रहे हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी फिर से आ रही है. लेकिन उस तेजी से आ रही है कि नहीं, ये मेरे ख्याल 1-2 महीने लगेंगे. हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये जो डेटा है ये वही अपवर्ड ट्रेंड दिखाता रहेगा कि अपवर्ड ट्रेंड अगर सस्टेन होगा कि नहीं, ये देखना पड़ेगा आगे वाले दिनों में. सो कॉशियस ऑप्टिमिज्म जो एक बहुत आजकल टर्मिनोलॉजी यूज होती है, आपको लगता है वही अभी जो रुख है वो अडॉप्ट करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, और शायद पार्शियली अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए? क्या रुख रहना चाहिए?
देखिए, कॉशियस ऑप्टिमिज्म तो हमेशा रहना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा टर्म है। इन्वेस्टर्स के लिए तो मेरे ख्याल में अभी बुलिश रन तो रहेगा मार्केट में। जैसे मैंने कहा, जो वजह है मैंने दिखाया। पहले तो हम इकोनॉमिक रिकवरी की बात कर रहे थे, लेकिन इसका असर स्टॉक मार्केट पर है। लेकिन स्टॉक मार्केट के ऊपर बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल बुलिश ट्रेंड जो है ये आगे वाले दिनों शायद मतलब कंटिन्यू करता रहेगा। Sushma ji, one more thing. Of course, both the Sensex and the Nifty are logging fresh record highs. But when if it comes to the mid cap and the small cap index, we're seeing quite a bit of volatility in these two indices in the past few days. So, do you think the record highs that we are seeing in the Sensex and the Nifty will at some point percolate to the mid cap and small cap index also, or will the volatility continue in these two indices? You see, the small cap and mid cap, yes, there has been volatility, and I would think it will continue because there is a recognition that that this is a sector that has probably suffered the most during the pandemic, and investors are cautious about going ahead and making further investments in this sector. But I would think that now that the economic indicators are looking better, I would expect that the outlook for both mid cap and small cap should improve in the coming months. अब सुषमा जी, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो जो लेटेस्ट WPI फिगर्स आए हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिस पर ज्यादा नजर रहती है आरबीआई की, वो फिर 2 से 6% के कंफर्ट जोन में आ गया है। 5.6%, 6.3 अप्रोक्सीमेटली 6.3% से कम होकर। आपको लगता है कि ये एक राहत का विषय है हमारे इकोनॉमी के लिए, और मॉनेटरी पॉलिसी में जो ईजिंग है वो जारी रखने की हम आशा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। ये तो एक राहत का विषय है। ये जो पहले 6% से ज्यादा ऊपर जा रहा था, अब 5% के करीब आ रहा है। ये 5.2% के करीब आ रहा है। और जो आपने ठीक कहा, जो आरबीआई के जो ब्रॉड इन्फ्लेशन बैंड के अंदर आ रहा है, ये इसके दो वजह, एक बहुत बड़ा वजह ये है कि बरसात शायद हमारा संपर्क में कुछ बाधा आई है सुषमा जी के साथ। जैसा सुषमा जी हमें बता रही थी कि इन्फ्लेशन जो है उसके लिए कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। एक तो फूड प्राइसेस का नीचे आना, मॉनसून का अच्छा रहना, और बाकी हम उनसे इस चर्चा जारी रखेंगे। उनसे हम संपर्क साधने की फिर कोशिश कर रहे हैं। आरबीआई से ही जुड़ा एक स्टोरी है, वो हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में वित्तीय समावेश के आकलन के लिए एक संपूर्ण वित्तीय समावेश सूचकांक एफआई इंडेक्स की शुरुआत की है। इसकी घोषणा 17 अप्रैल को वर्ष 2021-22 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में की गई थी। मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए वार्षिक एफआई इंडेक्स 53.9 दर्ज हुआ है। मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए आंकड़ा 53.4 था। आरबीआई ने एक वक्तव्य में कहा कि वित्तीय समावेशी सूचकांक जुलाई में हर वर्ष एक बार प्रकाशित किया जाएगा। एफआई इंडेक्स की परिकल्पना एक बहुपक्षीय सूचकांक के रूप में की गई है, जिसमें सरकार और विभिन्न क्षेत्रीय नियामकों के साथ मिलकर बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक तथा बीमा क्षेत्र से जुड़े ब्यौरे को शामिल किया जाएगा। इस सूचकांक में वित्तीय समावेश के पहलुओं पर जानकारी को 0 से लेकर 100 तक एक एकाकी मापदंड के माध्यम से दर्शाया जाएगा, जहां 0 की रीडिंग संपूर्ण वित्तीय बहिष्करण के लिए होगी और 100 की रीडिंग संपूर्ण वित्तीय समावेश के लिए होगी। एफआई इंडेक्स के 3 प्रमुख पहलू हैं। 35% महत्व वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को दिया गया है, सेवाओं के उपयोग को 45% महत्व दिया गया है और गुणवत्ता को 20%। इन 3 प्रमुख पहलुओं को कुल 97 विभिन्न सूचकों के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। सुषमा जी, आप हमारे साथ हैं फिर? हाँ जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। सुषमा जी, जो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई ने शुरू किया है, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है? क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत इम्पोर्टेंट कहें ऑब्जेक्टिव रहा है सरकार का।
बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत ही सिग्निफिकेंट है और मेरे ख्याल में ये शायद बहुत पहले आना चाहिए था ऐसा इंडेक्स जो है, जिससे हमें पता चले कि कितनी इंक्लूसिविटी बैंक्स की है सारे मतलब अपने कस्टमर्स की और क्लाइंट्स की, और ये मेरे ख्याल हमें दिखाएगा कि कहाँ कमियां हैं और कहाँ हमें सफलता हो रही है इस विषय में। तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है और मेरे ख्याल में आरबीआई आगे जाके शायद इसको थोड़ा सा और रिफाइन भी कर देगा। इसके और पहलुओं पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra, where we were discussing the Reserve Bank of India's new Financial Inclusion Index. And Sushma ji, as we were discussing before going on the break, the importance, I also want to know how important a role will this index play in the government's formulation of economic policies, because it's an inclusion, it gives you an overview of, it's taking into account the different sectors, and then it gives the broad parameters are access, usage and quality. So how important it will be for the government going forward to formulate its policies, economic policies? Yes. I think, of course, it has just come in. It's a very innovative idea, and it is something that not just this, I think this government has been talking about financial inclusion for a long time. But it is in the financial sector, we have had the problem that banks have not been able to really reach out and cover those who are unbanked. And this is going to give us an idea as to where the shortcomings are, where are the lacuna, where do we need to, make up. And certainly, as you're saying, the government will now be able to rely on this as some kind of, database where they can draw on it, and on the basis of that, then formulate policies for banking, for the financial sector. And I think it will be most valuable because you really should be able, I presume if the index is efficient, you should be able to get an index of where you are going to need to bring in people into the organized sector of financial services. ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, जिसमें बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, पोस्टल और पेंशन सेक्टर के बारे में भी डिटेल्स दी जाएंगी कि कितनी, जैसा आपने कहा कि गुणवत्ता सबसे इम्पोर्टेंट है, कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है, कितना बेनिफिट पहुंच भी रहा है बेनिफिशियरीज तक। सो आपको लगता है कि ये एक इंश्योर करेगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसीज की वो भी एफिशिएंट हो? बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैं थोड़ी सा अपने आप को रिपीट कर रही हूँ कि जहाँ ये हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचती नहीं है, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यही है कि जो लोग फाइनेंशियल सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो बैंकिंग सर्विसेज को नहीं इस्तेमाल कर सकते, इनको हमें इंक्लूड करना है। तो ये जो इंडेक्स है हमें दिखाएगा कि कहाँ कमियां आ रही है। अब जैसे आपने पेंशन के बारे में कहा, पेंशन पहुंच भी रही है लोगों को, पेंशन पहुंच रही है। अब पोस्टल सर्विसेज के बारे में या फाइनेंशियल सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज तो हमारे जो रूरल एरियाज में उसमें बहुत वाइड स्प्रेड है, वहां इसका फायदा उठाया जा रहा है कि नहीं। तो मेरे ख्याल में जैसे आपने पहले कहा कि पॉलिसीज इसके बेसिस पे हो सकती है, और इसका हमारी जो कोशिश ये रहेगी कि इंक्लूसिविटी को बढ़ाना है हमारे देश में। जो लोग फाइनेंशियल सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो इससे बाहर हैं, उनको हम इस दायरे में ले आए। जी,
अब चलते हैं करेंसी बाजार की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की गिरावट से 74 रुपये 35 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.1% बढ़कर 92.72 पर था। रुक करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। नियमन से जुड़े डरों के बीच चीन की इंटरनेट कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट के चलते एशिया पैसिफिक क्षेत्र के बाजारों में आज मंदी रही। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 2% लुढ़क गया और हांगकांग के हैंगसेंग में 1.7% की तीव्र गिरावट दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों 0.9% की मंदी में रहे और जापान का निक्केई सूचकांक 0.4% गिरकर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी गिरावट का रुख था। फ्रांस के कैक में 0.6% की गिरावट थी और जर्मनी का डैक्स 0.2% के नुकसान पर था। लंदन के फुटसी में हालांकि 0.1% की मामूली वृद्धि चल रही थी। Moving on to the U.S. markets, the Wall Street's main indices remained mixed and range-bound yesterday as weak economic data from China sparked fears of slowing global growth. Cautious investors moved into defensive stocks. Political turmoil in Afghanistan also dampened investor sentiment. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 gained 0.3%, while the Nasdaq Composite Index fell 0.2%. Sushma ji, here, like we just said, that the Wall Street's main indices were range-bound yesterday because there is this economic data coming out from China, which is the second biggest economy in the world, and so to say, the driver. I mean, it's one of the biggest manufacturers. So, fears of global, your Chinese economy slowing down. How much of an impact may there be in the coming days on global economy? Well, China slowing down is one of those things that we used to talk about the U.S. economy. That when the U.S. economy sneezes, the rest of the world gets cold. So that is, I think, very similar to what is the situation in China. Whatever's happening in China, because it's a huge manufacturing base and it provides, the components and the materials for many products all over the globe. So China slowing down is a issue to be concerned about. The reason being, of course, right now is that they seem to have problems. Number one, as a revival of COVID infections in parts of the country. And secondly, they have been apparently trying to regulate some of their internet giants like Tencent and Alibaba. So this has affected the whole manufacturing and production cycle over there. USA especially, US markets are affected. If you see that the Indian markets are not so badly affected because we are not so interlinked with China. But the US definitely is. There's a very close linkage between the American and the Chinese economy. So they will be watching very closely because trade ties are very large between the two countries. सुषमा जी, अफगानिस्तान में जो राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना आ सकता है भारत पे? हमारे उनसे कितने कहें कि इकोनॉमिक टाइज कितने डीप हैं? असल में इस वक्त हमारे ऊपर ज्यादा असर नहीं होगा। अगर फिर से आपने देखा, हमारे स्टॉक मार्केट का कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं हुआ अफगानिस्तान की जो डेवलपमेंट्स हैं। ये इसलिए है क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक रिलेशंस है वो ज्यादातर एक तरफिया है। मतलब हम वहां पर जाके हमने काफी वहां पर काम किया है, रिकंस्ट्रक्शन का, हमने वहां डैम बनाए, हमने बहुत सारी अफगान पार्लियामेंट बनाया, हमने बहुत काम किया है, लेकिन वहां से हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं आई है। मतलब इट इज नॉट मच ऑफ अ टू वे कोलैबोरेशन, ये एक तरफिया ज्यादा है और इसी वजह से इतना ज्यादा असर हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर नहीं होगा। ये साइकोलॉजिकल जरूर होगा। अगर आपने अमेरिका में भी देखा है, वहां भी स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी असर की हुई है क्योंकि अमेरिका का विड्रॉल वहां पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है स्टॉक मार्केट के ऊपर, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति के ऊपर ज्यादा असर नहीं है। और एक और पहलू पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे, जो अमेरिका में $1 ट्रिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लान है उसको मंजूरी मिली है सेनेट द्वारा, और हमारे यहाँ भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको फ्रंट लोड करने की बात कही जा रही है। तो आपको लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने की, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी को होगा?
इनफैक्ट जो बाइडेन की पॉलिसी है और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो बनाया गया है, उसको काफी पैरेलल में लोग देख रहे हैं कि दो बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है, एक अमेरिका में है और एक हमारे देश में। हमारे देश में आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये जो फ्रंट लोडिंग है ये बहुत ही मतलब इसकी बहुत जरूरत है इस वक्त, क्योंकि हमारे इस वक्त हमारी इकोनॉमी को निवेश की जरूरत है और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा तो इससे डिमांड बढ़ेगा, इससे आमदनी बढ़ेगी, इससे जॉब्स बढ़ेंगे, तो काफी फायदा होगा अगर ये फ्रंट लोडिंग हो जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जैसे आपने खुद ही कहा, ये अनाउंस किया था शायद पिछले साल, अब उन्होंने अब कह रहे हैं कि फ्रंट लोडिंग करेंगे मेरे ख्याल। और इस वक्त हमें बहुत जरूरत है, इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है ये सेकंड कोविड वेव से उसका इम्पैक्ट हुआ था और मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड में ग्रोथ गई थी। अब इकोनॉमिक रिकवरी की बहुत जरूरत है और ये फ्रंट लोडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की भी बहुत जरूरत है। Moving on, oil prices today fell, pairing earlier gains amid worries over slowing demand amid a spike in the Delta variant of coronavirus infections. Slowing demand concern outweighed on expectations that major producers will not boost supply anytime soon. In intraday trade, Brent crude was trading at around $69.20 per barrel. WTI crude prices were at $66.80 per barrel. So, we have seen oil prices, international crude prices falling down in the last few days. But obviously, we're not seeing the prices are not percolating, the effects are not percolating down here in India. Although the fuel prices, domestic fuel prices have held now for a month. But yesterday, like you rightly pointed out at, in our 3 p.m. program, the finance ministers ruled out any cut in the excise duty on petrol and diesel for various reasons. So are we looking at 100 rupees a litre plus going forward as a new normal? Well, it really depends a great deal on global prices now. As the finance minister has said that, it will be difficult to reduce excise duties. I mean, I would personally say probably that they are keen not to reduce excise duties because there is a revenue constraint right now. In a year of the pandemic, we are facing revenue collections issues. So, there must be the other problem also, which the finance minister has pointed out regarding the bonds. Yes. But this is a time when revenue collections are needed. But it's not necessary that prices will remain so high in the coming days. In case global prices ease, then you will find a slight decline. Prices will be brought down to some extent. And right now, as you have mentioned, that prices have fallen in the last few days. I anticipate that there will be some more volatility in world oil markets in the coming days. और briefly, हमारे जो fiscal deficit है, उसके लिए definitely international oil prices का गिरना एक अच्छी खबर है? बिल्कुल हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि हमारे imports इतने ज्यादा हैं, 80% of our requirements are met from imports, तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। जी, अब चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी के अनुरूप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति वाला सोना 190 रुपए की बढ़त से 47,415 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी भी 180 रुपए की वृद्धि दर्ज करती हुई 63,640 रुपए प्रति किलो पर थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,794.30 प्रति आउंस पर था। चांदी भी दिन के कारोबार में तेजी के साथ $23.90 प्रति आउंस पर थी। आपकी ब्रीफ सी प्रतिक्रिया गोल्ड, माफ कीजिएगा समय नहीं है। सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। And before we close, a reminder of the headlines. Key domestic stocks hit fresh record highs, logging modest gains. Sensex closes near 55,800. Nifty settles above the 16,600 level. Global share markets decline amid slowdown in China and political turmoil in Afghanistan. And Brent crude prices decline to trade around $69 per barrel. And with this, we end this edition of Market Mantra. We'll meet tomorrow at 6:30 p.m. Till then, bye-bye. Namaskar. Market Mantra.